students, welcome to DIMG YouTube channel. So student, this is a lecture for MBA first year, that is for second semester, and the subject name is Human Resource Management, that is HRM, and the subject code is KMBN 202. So students, we had already discussed about what is Human Resource Management in our lecture 1, and we have discussed so many other things in our lecture 1, that is the characteristics, some definitions, objectives, so many things we had discussed. So this is also the topic which we are discussing today is of unit 1. So today we are discussing about the SHRM. What is SHRM? The conceptual framework and concepts of strategic SHRM. SHRM, the full form of SHRM is Strategic Human Resource Management. So what is it? So SHRM is an approach of decision making. ये डिसीजन मेकिंग का अप्रोच है. बस HRM इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके आगे S है, S इज फॉर स्ट्रेटेजी. तो हम स्ट्रेटेजिकली ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वी हैव टू डिस्कस दिस इन आवर टॉपिक. सो इट इज आल्सो अप्रोच which is related to decision making of an organizational objectives. ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर कनेक्टिंग विद द पीपल रादर देन एम्प्लॉइज. हम उन पीपल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है ऑर्गेनाइजेशन जो इस वर्क को टाइमली अचीव कराने में हेल्पफुल है. यहाँ ये नहीं है कि हम सभी एम्प्लॉइज को कंसर्न है और सभी एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करेंगे. वी आर बेसिकली और मेनली कंसर्न विद द पीपल्स हु आर basically used for achieving the objectives of SHRM. So this is a business strategy for the organization. At the same time, SHRM sets up a rapid connecting HRM with strategic management. While SHRM aims to clarify the whole course of action that the organization would like to accomplish its objective by the concerned people. तो बाद में दोबारा से वही बात आ रही है, जो SHRM है उसका बेसिक एम या मेन एम यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए कंसर्न पीपल के थ्रू वर्क करने की कोशिश करता है. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मेंशन है, राइट्स में ऐड किया है. SHRM would consider to handling with all people linked with the business for long term and integrate inclusive issues of organization. तो राइट में बोला है SHRM एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजीज या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का अप्रोच है, और इसके अंदर बेसिकली किन चीजों के ऊपर है, किन इश्यूज के ऊपर वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि उसका कल्चर, उसकी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज, अदर थिंग्स आर चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा. तो SHRM एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसके अंदर ये सारे तरीके की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. Next, introduction and characteristics on scope of SHRM. We had already discussed about the SHRM की strategic human resource management क्या है वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जनरलशिप. So today we are and now we are discussing about characteristics. So what are the characteristics of strategic human resource management? पहली characteristic है recognition of the outside environment. तो outside environment हमने SWOT analysis भी पढ़ा है. SWOT analysis होता क्या है? Strength, weakness, opportunity, threats. तो यहाँ पर जो outside environment है उससे ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं और कुछ थ्रेट्स भी हैं. किस तरीके की फॉर्म में थ्रेट्स की अपॉर्चुनिटीज है, जैसे लॉज एज पर द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस, देन सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंज, then domestic and international political forces and technology and so on. तो ये सारी की सारी पहली कैरेक्टरिस्टिक में आएंगी, रिकॉग्निशन टू द ऑफ द आउटसाइड एनवायरनमेंट. Next we are discussing about the impact of competition. This is the second characteristic of SHRM. The forces of competition in attracting, rewarding and using employees has a major effect on corporate human resource strategy. तो हम किस तरीके की forces को use कर रहे हैं for the competition or attracting or rewarding the employees. These all comes under the competition. Then labor market is also the part of competition. How we are giving them the what is the wage rate, what is the unemployment rate, etc. These all comes under this. Then long range focus. तो जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में भी बताया कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोकस है ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देन अदर कैरेक्टरिस्टिक इज चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग फोकस. तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोकसिंग ऑन द चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन कंसिडरेशन ऑफ ऑल पर्सनल. स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो है ह्यूमन रिसोर्स की, ये सभी तरीके की
फॉर्म्स के सभी तरीके के एम्प्लॉय से कंसर्न है और जो जहाँ बेटर यूज या कनेक्टेड है उससे वहाँ फुल वर्क की कोशिश की जाती है, ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव कराने की कोशिश की जाती है। इंटीग्रेशन विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी adopted by a firm should be integrated with the firm's corporate strategy। और जो भी यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, it should be integrated with the overall firm's corporate strategy। Then the approaches of SHRM, what are the approaches? Attempts to link human resource activities with competency based performance measure। पहला आपका अप्रोच यही है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज को हम परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर बेस्ड अटेम्प्ट या कंबाइन करते हैं या उनके बारे में कॉम्पिटेंसी लेवल देखते हैं। देन अदर अप्रोच इज अटेम्प्ट टू लिंक ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे कोशिश की जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज को बिजनेस सरप्लस या प्रॉफिट्स के साथ हम लिंक कर सकें। दीज आर द टू अप्रोचेज ऑफ SHRM। Then the other thing which mentioned in your syllabus is difference between SHRM and conventional human resource management। तो SHRM में और human resource management, conventional means traditional human resource management में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर उनका डिफरेंस मेंशन है। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर HRM। तो ट्रेडिशनल HRM में स्टाफ स्पेशलिस्ट है, स्ट्रेटेजिक में लाइन मैनेजर्स है। देन फोकस, ट्रेडिशनल HRM इज फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय रिलेशन, strategic HRM is focusing on partnership with external and internal customers। The role of HR, it is transactional change follower, and SHRM transformational change leader and initiator। Then other difference, initiatives, HRM is slow, reactive, fragmented, and SHRM is fast, proactive, integrated। Then time horizon, HRM is for short term and it is for short, medium and long term। Control, traditional HR is basically of a bureaucratic nature and SHRM is flexible in nature। Then job design, tight division of labor and specialization। तो ट्रेडिशनल HRM में आपका स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर था और यहाँ पर ब्रॉड है, फ्लेक्सिबल है। वी आर गिविंग ट्रेनिंग और वी आर मेकिंग टीम्स ऑल्सो इन SHRM। देन की इन्वेस्टमेंट्स, की इन्वेस्टमेंट क्या है ट्रेडिशनल HRM में? कैपिटल एंड प्रोडक्ट, और SHRM में की इन्वेस्टमेंट है पीपल एंड नॉलेज। अकाउंटेबिलिटी, HRM में कॉस्ट सेंटर है एंड इन SHRM इट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल HRM एंड SHRM। Now we will discuss about the strategy formulation। What is strategy formulation? So strategy can be formulated at 3 levels। तो strategy formulation क्या है, उसको हम कैसे formulate कर सकते हैं? हम उसे 3 levels पे formulate कर सकते हैं, namely corporate level, business level and functional level। तो strategy जो formulate होती है it is basically on 3 levels and the names are given here। Number 1 is corporate level, then business level and functional level। So we will discuss these levels now। This is the diagram of levels of strategy: corporate level, business level and functional level। So levels of strategy में हम पढ़ते हैं, पहला है corporate level। तो corporate level strategy क्या है? It defines the business area in which your firm will operate। तो corporate level strategy में वो आपकी फॉर्म या कंपनी किस चीज का वर्क बिजनेस एरिया में इन्वॉल्व है, उस बिजनेस एरिया को डिफाइन किया जाता है। It deals with aligning the resources deployment across a diverse set of areas। Strategy formulation at this level involves integrating and managing the diverse businesses। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल पे बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द एरिया ऑफ बिजनेस इन विच द कंपनी इज डूइंग द बिजनेस। एंड देन नेक्स्ट वन इज बिजनेस लेवल। इन बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी formulated for specific strategic business units and relate to distinct product market area। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में जो है ये बेसिकली इस पे कंसंट्रेट करके स्पेसिफिकली ऑन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स SBUs एंड रिलेट टू डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट मार्केट एरिया और डिफरेंट प्रोडक्ट के मार्केट एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव पोजीशन बताती है एक SBU की इन डिफरेंट प्रोडक्ट या मार्केट एरियाज। For example, your firm may choose overall cost leadership as a strategy to be pursued in its steel business। आपकी फर्म ने स्टील बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को चूज किया है। डिफरेंशिएशन इन इट्स स्टील बिजनेस
business and focus it on automobile business. तो उसके पास दो business है, tea business and automobile business. The business level strategies are decided upon the heads of strategic business units and their teams in light of specific nature and industries which they are operate. तो किस तरीके की इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, किस किस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट दे आर लॉन्चिंग टू द मार्केट, और उन्हीं के ऊपर सारे डिस्कशंस किए जाते हैं. Then functional level strategy, it is related to the different functional areas. यहाँ पे हम different functional areas के ऊपर बात करते हैं which a strategic business unit has. एक strategic business unit के different functional areas क्या हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं. जैसे एक strategic unit के पास मार्केटिंग एक फंक्शनल एरिया हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, ऑपरेशंस हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं. तो दीज आर द different functional areas of one SBU, strategic business unit. तो हम इन्हीं सारे फंक्शनल एरियाज में जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं, इट इज बाय द फंक्शनल हेड्स अलोंग विद देयर टीम्स. तो फंक्शनल हेड्स के थ्रू उनकी टीम्स के साथ की जाती हैं एंड अलाइन विद द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज. बेसिकली जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है, इट इन्वॉल्व्स अ शॉर्ट टर्म फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ये शॉर्ट टर्म फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेसिकली यूज की जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द functional levels of strategy, that is corporate level strategy, business level strategy and functional level strategy. So these are the formulation of strategies. So next we will discuss about strategy formulation. Strategy formulation का concept and process क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग प्रॉपर डायरेक्शन टू अ फर्म. हम फर्म के लिए प्रॉपर डायरेक्शंस कैसे ऑफर करेंगे, हम उस सारी चीजों की यहाँ पे बात करेंगे. बेसिकली ये लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है और प्रेजेंटली क्या अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में हमें कैसे ग्रैब करें, उन सब चीजों के रिगार्डिंग हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं. इसके बाद है दीज मॉडल्स. अब स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ मॉडल्स हैं. वो मॉडल्स कौन कौन से हैं? दैट इज एंटरप्रेन्योरियल मॉडल, देन एडेप्टिव मोड, प्लानिंग मोड. These are three modes which we are using under strategic formulation. So strategic formulation के अंदर three types of modes we are using. Entrepreneurial mode, this is the formulated by one powerful individual, and next is adaptive mode, and then other is planning mode. तो जैसा नाम है उसी तरीके के ये modes हैं, उसी के थ्रू strategy formulate की जाती है. अब बात आती है steps की. Strategic formulation के steps क्या क्या हैं? पहला स्टेप है डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन. सबसे पहला स्टेप रहेगा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में कि हम स्ट्रेटेजिक विजन को डेवलप करें. विजन में हम क्या स्पेसिफाई करें, व्हाट डायरेक्शन और पाथ टू फॉलो, किस डायरेक्शन या पाथ को फॉलो करके हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. हमें स्पेसिफाई करना होगा व्हाट प्रोडक्ट्स, किस तरीके की मार्केट, व्हाट टेक्नोलॉजीज या कस्टमर पॉलिसीज वी आर फॉलोइंग. तो ये सारी चीजें विजन में क्लियर होंगी. Then vision communicate management aspirations, how to boost morale of organization and engages them for a common direction. तो कुछ पॉइंट्स है कि जो जो विजन में हमें फाइनली डिस्कस करने हैं, या प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है विजन. तो कंपनी की क्या क्या स्ट्रेटेजी जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसकी क्या क्या रिजल्ट्स होने चाहिए. तो ये कुछ 6 पॉइंट्स यहाँ पे हमने विजन के मेंशन करे हैं. देन अदर स्टेप इन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स का जो आउटकम है वो मिशन एंड विजन ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स, देयर रिजल्ट्स, देयर ग्रोथ एक्सेट्रा. तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के लिए एक अप्रोच यूज करते हैं. उस अप्रोच का नाम है BSC, दैट इज बैलेंस स्कोरकार्ड. तो ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हम बैलेंस स्कोरकार्ड को अप्रोच को यूज करते हैं. ये हमारा सेकंड स्टेप है प्रोसेस का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो बैलेंस स्कोरकार्ड क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है. ओवरऑल कंपनी शुड सेट बोथ स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी दोनों तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करे, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक. हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच को भी ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए. दिस अप्रोच स्टेट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस मोर ऑन अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. तो बैलेंस स्कोरकार्ड जो अप्रोच है वो बेसिकली किसको ऊपर ज्यादा फोकस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करती है. जैसे कि क्या क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा.
बैलेंस स्कोर कार्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस टू मेजर कंपनी परफॉर्मेंस। बैलेंस स्कोर कार्ड साथ ही साथ इस चीज में भी हेल्प करता है कि हम कंपनी की परफॉर्मेंस को रिगार्डिंग द सेट ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं उसके रिगार्डिंग कंपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। और कंपनी की स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो किसी भी कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दो हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल दोनों तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी एंड लॉन्ग टर्म भी। तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो these all comes under long term objectives। और short term objectives कौन से होते हैं, it is can be identical to long range objectives। For example, if company has long term objective of 15% growth, अगर किसी कंपनी का long term objective है कि उन्हें 15% प्रॉफिट ग्रोथ करनी है हर साल, तो उस कंपनी का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वुड ऑल्सो बी 15% प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ करंट ईयर। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज फॉर 1 ईयर और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज फॉर मोर देन 5 ईयर्स या कितने भी साल का हो सकता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। दिस इज द स्टेप नंबर 2, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देन स्टेप 3 इज क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन। तो अब हम किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन्स को अचीव कर सके कंपनी के। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। अब हमने थर्ड स्टेप तक सभी वर्क कर लिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन होगा। इज एन ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी। दिस स्टेज इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट। ये मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस का। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। This stage is like management process and includes following। अब implementation and executing strategy के अंदर कुछ इस तरीके के लिए भी एक मैनेजमेंट प्रोसेस की तरह ही स्टेज अपना वर्क करती है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, देन डेवलपिंग द बजट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, यूजिंग द बेस्ट नोन practices to perform businesses activities, then motivating people to pursue the target objectives, trying rewards and incentives directly to the achievement of performance objectives। So these all things are not very much new। हम सारी चीजें HRM में ऑलरेडी मीनिंग में भी पढ़ चुके हैं, वही चीजें दोबारा से यहाँ पर हैं। Then creating a company good culture। So ये सारी चीजें इसके अंदर स्टेप नंबर 4 के अंदर आई। Then step 5 is monitoring implemented strategy and making corrective adjustment। सारे के सारे पॉइंट्स स्टेप नंबर 4 तक हमने सारा वर्क कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में हमने जो भी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की है उसको मॉनिटर करेंगे प्रॉपरली, और अगर कोई करेक्टिव एडजस्टमेंट या कुछ करेक्शन होनी है तो हम उसे उस हिसाब से यहाँ पर करेंगे। सो दिस इज अंडर स्टेप नंबर 5। सो दिस इज ऑल। इसमें हमने सारे के सारे स्टेप्स पढ़े हैं। This is the process of strategy formulation and we have completed all the steps under it. There are total 5 steps under it। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो आज हमने व्हाट इज SHRM, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रेडिशनल HRM एंड SHRM का डिफरेंस क्या है, उसके अलावा हमने प्रोसेस पढ़ा है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होती क्या है, उसका मीनिंग, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इसके अलावा बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा है, और साथ ही साथ हमने लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन भी पढ़ा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।